السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک ایسے وقت میں جب ملک کے اندر اقلیت اور اکثریت کے درمیان خلیج اور تقسیم شدید ہوتی جا رہی ہے، ایسے میں سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نئے تعلیمی سیشن کے نصاب میں 10ویں جماعت کی سوشل سائنس کی کتاب سے پاکستانی شاعر فیض احمد فیض کی نظم اور 11ویں کی تاریخ کی کتاب سے اسلام کے آغاز، عروج اور اس توسیع سے متعلق باب کو ہٹا دیا ہے۔ اسی طرح 12ویں کی کتاب سے مغلیہ سلطنت کی حکمرانی اور نظم و نسق کے باب میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ سی بی ایس ای کے اس اقدام پر علمی حلقوں میں شدید بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام سے متعلق باب ہٹانے سے غیر مسلم طلبہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کئی اہم معلومات سے محروم ہو جائیں گے، جبکہ ملک کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، ایسے میں ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں طلبہ کو روشناس کرانا اور افہام و تفہیم پیدا کرنا شدت سے ضروری ہے۔ تاریخ اسلام کی جگہ چنگیز خان کو ایک عظیم شخصیت اور حکمراں کے طور پر پیش کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ چنگیز خان اور اس کے پوتے ہلاکو خان کو ان کی سفاکی کے لیے جانا جاتا ہے، اور دونوں نے اپنے وقت میں متعدد مسلم مملکت اور حکومتوں پر حملے کیے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ملک میں کامن سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ نے بی جے پی لیڈروں کی میٹنگ میں یہ بات کہی۔ بی جے پی نے 2024 میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات کی تیاری ابھی سے کر لی ہے۔ اس کا بلو پرنٹ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ بھوپال میں منعقد ایک کور میٹنگ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ بات کہی۔ اس میٹنگ میں امت شاہ نے کہا، رام مندر، دفعہ 370 اور 3 طلاق جیسے معاملے پر بی جے پی کو کامیابی ملی ہے۔ اب یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ کامن سول کوڈ کو اتراکھنڈ میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاگو کیا جا رہا ہے۔ حکومت آسام کی جانب سے تشکیل شدہ ایک پینل نے سفارش کی ہے کہ آسامی مسلمانوں کی ریاست کے ایک دیسی گروپ کی حیثیت سے نشاندہی کے لیے ایک اعلامیہ جاری کیا جائے۔ پینل نے، جس کی کئی ذیلی کمیٹیاں ہیں، یہ بھی سفارش کی کہ آسامی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ڈائریکٹوریٹ یا اتھارٹی تشکیل دی جائے تاکہ آسامی مسلمانوں کو ان کی علیحدہ شناخت ثابت کرنے کے لیے ضروری دستاویزات فراہم کیے جائیں، اور یہ دستاویز شناختی کارڈ یا سرٹیفکیٹ کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ اتر پردیش حکومت ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر کیشو پرساد موریہ نے یہ بات بتائی۔ موریہ نے ریاست اور پورے ملک میں یکساں سول کوڈ پر جلد عمل آوری کی تائید کی۔ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منتر کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اسے ایک اہم اقدام قرار دیا اور کہا کہ سب کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ کیشو پرساد موریہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک ملک میں سب کے لیے ایک قانون وقت کا تقاضا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک شخص کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے دوسرے قانون کے نظام سے باہر نکلیں۔ ہم یکساں سول کوڈ کے حق میں ہیں۔ ممبئی پولیس نے ہفتے کی شام رکن اسمبلی روی رانا اور ان کی اہلیہ رکن پارلیمنٹ نونیت رانا کو مختلف گروپوں کے درمیان عصبیت پیدا کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ انہیں زبردست ڈرامے کے درمیان ممبئی کے مضافاتی علاقے کھار میں ان کے مکان سے باہر نکلنے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ اس کے چند گھنٹے قبل اس جوڑے نے مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کی نجی رہائش گاہ ماتوشری کے باہر ہنومان چالیسا پڑھنے کا اپنا منصوبہ منسوخ کر دیا تھا۔ رانا جوڑے کے خلاف مذہب، ذات پات، مقام پیدائش، رہائش، زبان وغیرہ کی بنیاد پر مختلف گروپوں کے درمیان درار ڈالنے اور اسے فروغ دینے سے متعلق تعزیرات ہند کی دفعہ 153(a) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن نے ہندوستانی طلباء کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان نہ جائیں۔ دونوں تنظیموں نے کہا کہ ہندوستانی شہریوں اور بیرون ملک مقیم ہندوستانی طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان نہ جانے کا مشورہ دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے کسی بھی قسم کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو وہاں کی ڈگری کی بنیاد پر ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کے دوسرے اداروں میں کوئی ملازمت یا داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ تنظیموں نے واضح کیا ہے کہ ہندوستانی شہریت حاصل کرنے والے بے گھر افراد اور ان کے بچے پاکستان میں حاصل کی گئی تعلیم کی بنیاد پر ہندوستان میں ملازمت حاصل کرنے کے اہل ہوں گے، لیکن اس کے لیے انہیں مرکزی وزارت داخلہ سے سیکورٹی سے متعلق منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق گورنر رگھو رام راجن نے کہا کہ مخالف اقلیت امیج سے ہندوستانی پروڈکٹ کی مارکیٹ اور کمپنیوں کو نقصان ہوگا۔ علاوہ ازیں بیرونی حکومتوں کو یہ یقین ہوگا کہ ہندوستان قابل اعتماد نہیں رہے گا۔ ٹائمز نیٹ ورک انڈیا اکنامک کانکلیو میں انہوں نے کہا کہ کسٹمرز جمہوری ملک سے اشیاء خریدنے کے لیے تیار ہیں، جو ملک اپنے تمام شہریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ رگھو رام راجن نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات بھی اسی بات پر کام کرتی ہے۔ اب حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا حکومت قابل بھروسہ ہے یا اقلیتوں کے ساتھ سلوک کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے۔
कर्नाटक में हिंदू तंजीमों की जानिब से अजान के खिलाफ घर घर मुहिम चलाने का ऐलान किया गया है। बेंगलुरु के राजाजी नगर इलाके से मुहिम का आगाज किया गया। श्री राम सेना ने इस मुहिम का ऐलान किया है। हिंदू तंजीमों ने मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 9 मई का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद उन्होंने लाउड स्पीकर के जरिए रियासत की तमाम मंदिरों से हनुमान चालीसा बजाने का भी ऐलान किया है। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा और कायदीन ने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो फिरकाराना इश्तियाल अंगेजी पर सब्र और तहमुल का मुजाहरा करें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बड़े ही फख्र के साथ यह नज़ारा देखा कि 75,000 से ज़ायद अफराद ने बैक वक्त बिहार के जगदीशपुर कस्बे में हिंदुस्तान का कौमी परचम लहराया, जहां बीजेपी ने 18 साल कबल पाकिस्तान का बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक तारीख बनाई। जगदीशपुर के साबिक राजा वीर कुंवर सिंह की 164वीं बरसी के मौके पर यह कारनामा अंजाम दिया गया। वीर कुंवर सिंह 1857 की बगावत के एक हीरो थे। हिंदुस्तान आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुनासिबत से आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत इसका एहतमाम किया गया। अमित शाह के साथ बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के सरकर्दा कायदीन बशमुल मरकजी वज़ीरा आर.के. सिंह, नीत्यानंद राय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद और रेणु देवी और इनके पेशरो सुशील कुमार मोदी ने मुकम्मल 5 मिनट तक तिरंगा लहराने में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक मुख्तलिफ अंदाज में नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने मरकजी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल की रिहाइशगाह पर मुनक्किद रोंगाली बेहू प्रोग्राम में शिरकत की। मोदी ने 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक दीगर प्रोग्रामों के अलावा आसाम के फनकारों बेहू रुक्स और लोक रुक्स का भी लुत्फ उठाया। उन्होंने फनकारों और दीगर मेहमानों से बातचीत भी की। इस मौके पर मोदी फनकारों के हमरा ढोल बजाते हुए भी नजर आए। जहांगीरपुरी तशद्दुद और यूक्रेन जंग से मुतालिक मीडिया कवरेज के मद्देनज़र मरकज़ ने न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को सख्त एडवाइजरी जारी की कि वो ऐसे किसी भी मवाद की इशात या ट्रांसमिशन से बाज रहें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचती हो, जो गुमराह कुन हो और जिससे मुतालिका रेगुलेटरी एक्ट की खिलाफ वर्जी होती हो। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की एडवाइजरी में कहा गया कि माजी करीब में देखा गया है कि कई सैटेलाइट चैनल्स ने गैर मुसद्दक़ा कवरेज किया है, वाक़यात को सनसनीखेज़ बनाकर पेश किया है, जिससे प्रोग्राम कोड की खिलाफ वर्जी होती है। रूस यूक्रेन जंग की रिपोर्टिंग के ताल्लुक से हुकूमत ने कहा कि यह देखा गया है कि चैनल्स बेबुनियाद दावे कर रहे हैं, वो बैनुल अक़वामी एजेंसियों की गलत तर्जुमानी कर रहे हैं। इसी तरह जहांगीरपुरी झड़पों के मामले में देखा गया कि टीवी चैनल्स ने भड़काने वाली सुर्खियाँ लगाई, तशद्दुद के ऐसे वीडियोज़ दिखाए जिससे मुख्तलिफ फ़िरक़ों में नफरत भड़क सकती है। वज़ारत ने कहा कि बाज़ चैनलों के बहस व मुबाहसे में गैर पार्लिमानी और भड़काऊ ज़बान इस्तेमाल हो रही है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के जिम्मेदारों ने जुम्मे के दिन बताया कि उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मुत्तसिल मस्जिद में लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल में बाकायदगी लाने का फैसला किया है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के मोतमद तनवीर अहमद ने कहा कि मस्जिद से 3 लाउड स्पीकर्स निकाल दिए गए हैं, सिर्फ एक लाउड स्पीकर धीमी आवाज़ के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ यकीनी बनाया जा रहा है कि आवाज़ मस्जिद के हुदूद से बाहर ना जाए। ये इक़दाम हम आहंगी की बरकरारी के लिए किया गया है। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने माह रमज़ान के दौरान अब तक तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख ज़ायरीन और नमाजियों की मेज़बानी की है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी ने मस्जिद नबी की इंतज़ामी अथॉरिटी के हवाले से बताया है कि उन्होंने मस्जिद के अमले और दीगर इंतज़ामी एजेंसियों के ताउन के साथ मस्जिद नबी में ज़ायरीन की आमद व रफ्त को आसान बनाया है। ओहदेदार अब्दुल अजीज़ अल अयूबी ने बताया कि मस्जिद नबी की इंतज़ामिया 24 घंटे काम करते हुए लाखों ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए बराह रास्त बातचीत एक मरतबा फिर शुरू हो गई है। इराक़ के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक दारुल-हुकूमत बगदाद में गुज़िश्ता रोज़ 21 अप्रैल से तेहरान और रियाद के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का अमल शुरू हुआ। ईरानी न्यूज़ एजेंसी नूर ने मुल्क की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर अहलकारों और सऊदी खुफिया सर्विस के सरबराह की मुलाकात की तस्दीक की है। ये दोनों मुल्क एक दूसरे के शदीद हरीफ तस्वुर किए जाते हैं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात सन 2016 से शदीद कशीदा है। तेलंगाना के वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बातें गांधी की करते हैं मगर काम नथुराम गौडसे के करते हैं। मरकजी हुकूमत से सवाल करने वालों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के दावे किए जा रहे हैं। जेल मुंतकिल करने का इल्ज़ाम आयद किया। के.टी.आर ने कहा कि मोदी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत तेलंगाना को कुछ भी नहीं दे रही है, मुल्क को तेलंगाना ही फंड्स फराहम कर रही है। मुल्क को खाना खिलाने वाली रियासतों में तेलंगाना का चौथा मुकाम है। के.टी.आर ने कहा कि रियासत में अपोजिशन जमातें ज़ात पात और मजहब की सियासत कर रही है। तेलंगाना के अवाम ही फैसला कर लें कि इन्हें गोलमाल तेलंगाना चाहिए या गोल्डन तेलंगाना चाहिए।
मुक़द्दस माह रमज़ान के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम करने का फैसला किया है। KCR के दफ्तर के साथ जारी एक बयान के मुताबिक KCR ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम 29 अप्रैल को शाम 6:10 पर LV स्टेडियम में अजीमुशान पैमाने पर किया जाएगा, जिसमें मजहबी कायदीन, उलमा, मशाइखीन, अवामी नुमाइंदे, सरकारी ओहदेदार और अवाम की शिरकत रहेगी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने अपने पैगाम में कहा कि तेलंगाना आज पूरे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब और मजहबी रवादारी की एक मिसाल बन गया है। हुकूमत रियासत में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मसावी अहमियत देती है और इनकी तहजीब व तमद्दुन का एहतराम करती है। हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए मुतअद्दिद स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल कर रही है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज विजिलेंस शोबे के ओहदेदारों ने जहानुमा के इलाके AR नगर में सैयद रहमतुल्लाह के मकान का अचानक मुआयना करते हुए गैर कानूनी नल कनेक्शन का पता चलाया और 15 mm साइज के पाइप को जब्त कर लिया। इसके अलावा विजिलेंस ओहदेदारों ने इस इलाके में मोहम्मद जमील नामी शख्स के मकान में गैर कानूनी नल कनेक्शन का पता चलाया और इस मकान से 15 mm साइज के पाइप को जब्त किया। विजिलेंस के ओहदेदारों की शिकायत पर फलकनुमा पुलिस ने इन दोनों मालिकीन के खिलाफ ताज़िरात-ए-हिंद की दफ़ा 272, 430 और 379 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के ओहदेदारों ने सारिफिन को इंतबाह दिया है कि अगर वो गैर कानूनी नल कनेक्शन रखेंगे तो इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क में बुलडोजर सिर्फ एक ही मजहब के मानने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुल्क के दारुल-हुकूमत दिल्ली के इलाके जात जहांगीरपुरी में जिन इमलाक को मुस्मार किया गया, इनमें 85% मुसलमानों का इमलाक है। 15% हिंदू भाइयों के दुकानात को भी मुनहदिम किया गया है। ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से राजस्थान के अलवार में एक कदीम मंदिर और दिल्ली में जहांगीरपुरी की इंहदामी कार्रवाई को एक दूसरे से मरबूत करने पर एतराज़ किया और कहा कि दिल्ली में जो कुछ किया गया इससे कानून की हुक्मरानी कमज़ोर हुई है। राजस्थान में अलवार की जिस बल्दिया में मंदिर का इंहदाम किया गया वहाँ BJP बल्दिया में अक्सरियत में है। बल्दिया ऐवान में 300 साल कदीम मंदिर के इंहदाम का फैसला किया गया और इस फैसले पर अमल करते हुए मंदिर को तोड़ा भी गया, जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस हुकूमत है। इस वाक़े के लिए BJP और कांग्रेस दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।